السلام علیکم، دس از امرتا اسد، یور ٹوڈیز انٹرویور۔ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا نام ہے مس پرہ سید۔ پرہ جو ہے وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتی ہیں، وہ گریجویشن کر رہی ہیں یونیورسٹی آف سندھ سے، اور اس کے علاوہ پرہ ملٹی ٹاسکر ہے۔ پرہ کے بارے میں میں آپ کو جتنا بتاؤں اتنا کم ہے۔ پرہ ہوسٹنگ بھی کرتی ہیں اور پرہ ایک بہت اچھی ٹرینر بھی ہیں آئی وائی سی کے پلیٹ فارم سے، وہ ہوسٹ بھی کرتی ہیں اور ٹریننگس بھی کنڈکٹ کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ٹریننگ ایسوسیٹ بھی ہے ای سی آئی کے پلیٹ فارم سے۔ سو لیٹس ویلکم یو پرہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنے بزی اسکیجول سے آج ہمیں ٹائم دیا۔ آئی ایم سو تھینکفل ٹو یو۔ تھینک یو سو مچ امرتا، آپ نے جتنی میری تعریف کی ہے لٹرلی میں نہیں سمجھتی کہ میں اس کے قابل ہوں۔ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ہیئر اینڈ گیونگ می دس آنر۔ تھینک یو پرہ۔ ہاں پرہ، میں یہ چاہوں گی کہ آپ، میں نے تو آپ کا انٹروڈکشن کروا لیا، لیکن آپ اپنا انٹروڈکشن اپنی زبانی کروائیں تاکہ ہمارے جو ویئرس ہیں وہ آپ کے بارے میں زیادہ جان سکیں۔ جی، جو آپ نے کہا وہی میرا انٹروڈکشن ہے کہ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں، فائنل ایئر میں ہوں، یونیورسٹی آف سندھ سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کر رہی ہوں، اور اس کے علاوہ میں ہوسٹنگ کرتی ہوں اور آن لائن سیشن کنڈکٹ کرتی ہوں۔ آئی وائی سی انوویٹو یوتھ فار چینج کے پلیٹ فارم سے میں آن لائن سیشن کنڈکٹ کرتی ہوں، اور اس کے علاوہ میں ای سی آئی ایک پلیٹ فارم ہے جس میں ٹرینرز کی سلیکشن ہوتی ہے آفٹر ایوری 10 ایئرس، تو اس میں بھی میں ایک ٹرینر ہوں، ٹرینر کی خدمات سر انجام دے رہی ہوں، اور وہاں پہ بھی جلد جو ہے وہ لائیو سیشن کرنا اسٹارٹ کر دوں گی۔ اور اس کے علاوہ میں نے ریڈیو پہ بھی کام کیا ہوا ہے، اور میں شارٹ اسٹوری رائٹر بھی ہوں، میں اسٹوریز بھی لکھتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں جو بھی آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ مینجمنٹ کے بھی کام بہت کر چکی ہوں۔ ہاں، سب سے مین چیز جو ہے وہ گوگل ڈیولپر ہوں۔ گوگل کی ایک اپارچونٹی ہے جس میں مینجمنٹ لیڈ ہوں، اور جس کے ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو مینیج کرنا ہمارے ہینڈ اوور ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہوں میں ٹی وی پہ بھی آ چکی ہوں، مارننگ شوز بھی ایک دو دفعہ میں نے کیے ہیں۔ اٹس آل اباؤٹ می۔ تھینک یو سو مچ پرہ۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے ورڈس کو آپ کے بارے میں جان کر بہت خوشی ملی ہوگی اور آپ سے بہت انسپریشن ملی ہوگی، کیونکہ جتنی ساری ایکٹیویٹیز آپ نے ہمیں بتائی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ آج کل کے ہمارے زمانے میں لڑکیاں اتنی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں کچھ، لیکن بہت ہی کم تعداد میں۔ تو میرا آپ سے پہلا کوشچن یہ ہوگا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی ایک طلبہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ ہوسٹنگ بھی کرتی ہیں، ٹرینر بھی ہیں، تو آپ کا مطلب جو آپ نے اپنا ڈپارٹمنٹ سلیکٹ کیا تھا وہ آپ نے خود سے سلیکٹ کیا تھا، یا آپ کو ایسی جیسے آج کل اسٹوڈنٹس کو مل جاتا ہے بس چوائس میں، تو اس طرح ملا تھا، یا آپ کا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں کوئی خود کا ایک اپنا انٹرسٹ تھا؟ کیونکہ آپ کی ہوسٹنگ والی فیلڈ اور آپ کی ٹریننگ ہوسٹنگ اور یہ آئی ٹی فیلڈ تھوڑی مطلب بہت چینج ہے، تو اس حساب سے آپ ہمیں تھوڑا گائڈ کریں۔ امرتا، میں نہیں سمجھتی کہ ایک بندہ ایک سے زیادہ چیزیں نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ ایبلٹیز ہوتی ہیں اگر ہم ان چیزوں کو یوٹیلائز کریں یا ان چیزوں پہ نظر ڈالیں، تو میرے خیال سے ہم ایک سے زیادہ چیزیں کر سکتے ہیں، اور ہاں ہم فوکس بھی کر سکتے ہیں ان سب چیزوں پہ۔ جیسے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں پڑھتی ہوں، تو میں بائی چانس نہیں ہوئی ہوں، انفارمیشن ٹیکنالوجی مجھے کرنا تھا، آئی ٹی میری فیلڈ ہے، اور کیونکہ آج کل ایمرجنگ فیلڈ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی، ہمارا جو پوری دنیا جو ہے وہ آن لائن ہوتی جا رہی ہے، جیسے کہ آج اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو آج بھی ہم آن لائن سیشن کر رہے ہیں، کوئی فزیکل سیشن نہیں کر رہے، اور کورونا کی مہربانیاں ہیں بہت ہم پہ کہ ہماری ہر چیز جو ہے وہ آن لائن ہو چکی ہے، ہم آن لائن ہی ہر چیز کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے بیچ میں ایک بات ہو رہی تھی میری دوست سے، تو شی واز سیئنگ کہ یار کورونا بہت پھیل گئی ہے، میں آن لائن شاپنگ کروں گی، تو مطلب اب کے شاپنگ بھی آن لائن ہو چکی ہے، ٹیچنگ بھی آن لائن ہو رہی ہے، ہماری کلاسز بھی آن لائن ہو رہی ہیں، اگر ہم سیشنز کر رہے ہیں اویئرنیس کے تو وہ بھی آن لائن ہو رہے ہیں۔ تو آئی ٹی جو ہے وہ ایک ایمرجنگ فیلڈ ہے، اور آئی ایم پراؤڈ آف کہ میں آئی ڈی کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں آئی ٹی میں کام کر رہی ہوں، اور اس کے علاوہ میں گرافک ڈیزائننگ پہ بھی کام کر رہی ہوں۔ یہ چیز بھی ہے کہ میں
आईटी के साथ साथ ग्राफिक डिजाइनिंग पे भी काम कर रही हूँ, ताकि हम ऑनलाइन बैठकर और घर में बैठकर, स्पेशली घर में बैठकर हम अपनी खिदमत सर अंजाम दे सके और मनी भी कमा सकें। क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर जो लोग हैं वो एजुकेशन को ऐसे देखते हैं कि अगर हम कोई मतलब कोई भी डिग्री ले रहे हैं तो हम उससे कमाएं, हम पैसे ले वहां से ना। तो इसीलिए इजीली हम घर बैठे ऑनलाइन पैसे भी कमा सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। तो उसके अलावा आपका सवाल जो है, मैं आपके सवाल पे आती हूँ। तो मेरे लिए ये इतनी मुश्किल चीज नहीं थी होस्टिंग करना, क्योंकि ये चीज कहते हैं ना कि खानदान दर खानदान आती रहती है, तो इसीलिए। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या अमृता? अमृता, मेरी आवाज नहीं आ रही? जी प्रिय, आपकी आवाज़ मुझे तो आ रही है, मुझे तो आ रही है, लेकिन शायद हमारे व्यूअर्स को नहीं आ रही। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही या फिर प्रिय की आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को सुन सकते हैं। हाँ, हम तो दोनों की प्रिय, आप आवाज एक कंटिन्यू दूसरे करें। के पास क्लियर जा रही है। जी, तो मैं बता रही थी कि ये चीज जो है वो कहते हैं ना, एक से अगर हमारे बड़ों में होती है या किसी में होती है तो हमें जरूर जीन में इनहेरिट हो जाती है। तो ये चीज मुझे अपने बाबा से आई है। मेरे बाबा जो थे वो होस्टिंग करते थे, और उसके अलावा मेरे बाबा जो हैं वो पोइट भी हैं, लिखते भी हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मेरे बाबा से आई हुई हैं। तो ये चीज नेचुरली है, मुझे इस पे इतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ा है। हाँ, कुछ ये है कि बात करना जो है वो ऐसे नहीं आती। हम जब ज्यादा बुक्स पढ़ते हैं, हम जब ज्यादा मुताला करते हैं, तब हमें बोलना आता है। बोलना भी इतना आसान नहीं होता है। जब हम चीजें पढ़ते हैं तभी हमें बोलना आता है, या ज्यादातर एक्सपीरियंस से आता है। तो हाँ, उस चीज के लिए मैंने बहुत ज्यादा बुक्स पढ़े हैं और बहुत ज्यादा स्टडी की है। उसके बाद मैं आप सबके सामने बोलने के काबिल हुई हूँ, और उसके बाद मैंने होस्टिंग करना शुरू कर दी है। और ये मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए इतना मुश्किल था। थैंक यू सो मच प्रिय। जिस तरह आपने बताया कि आपको इनहेरिटेंस में ये सारे स्किल्स मिले हैं, उसके अलावा आपका हार्डवर्क भी है, इसीलिए आज आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं। तो जिस तरह एग्जैक्टली। आपने ये भी बताया कि आप एक ट्रेनर हैं और एक होस्ट है, तो अकॉर्डिंग टू यू प्रिय, एक अच्छी होस्ट में क्या काबिलियत होनी चाहिए, क्या खूबियाँ होनी चाहिए? मतलब अगर हम किसी को जज करते हैं होस्टिंग के बेसिस पे, तो उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए एक अच्छी होस्ट के लिए? अच्छा, देखें, पहले तो चीज होती है कॉन्फिडेंस की, कि आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप सामने जब आए तो आप सामने अच्छे से बात कर सकें। और आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस होती हैं उससे हमें पता चलता है, चेहरे से ही पता चल जाता है कि हम कितने कंफ्यूज हो रहे हैं, हम डर रहे हैं। तो पहले जो है वो हमें फेशियल एक्सप्रेशन को देखना चाहिए, उसके अलावा कॉन्फिडेंस को देखना चाहिए कि हम कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। और सबसे मेन चीज वो है बात करना। और आपको पता है बात करना कब कैसे आता है? हमें बात करना मुताले से आता है, पढ़ने से आता है। मैं अक्सर ये चीज देखती हूँ कि कहते हैं कि हमने रीडिंग छोड़ दी है, अब चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, ये हो रहा है, बुक्स हमने छोड़ दी हैं। तो ये चीज बिल्कुल गलत है। हम कभी भी पढ़े बगैर बात नहीं कर सकते। जब तक हमें चीजें पता नहीं होंगी हम बात नहीं कर सकेंगे। हम अगर हम बात करेंगे तो हम में और एक रेड़ी चलाने वाले में ना कोई फर्क नहीं रहेगा। जो फ्रूट सेल करता है वहां पे बैठा हुआ वो भी बात कर सकता है। मैं सिर्फ आम बात करने की बात नहीं कर रही यहाँ पे। हम में से हर कोई बात कर सकता है, जो रेड़ी चला रहा है या जो आम शॉप्स पे लोग बैठे हुए हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, एजुकेटेड नहीं है इतने, वो भी बात करते हैं और बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। लेकिन बात करना माने खेज बात करना, जिसमें हमें सबक मिले, हमें ये चीज मिले कि हाँ ये जो बोल रही है इसमें कोई माना है, और कोई किसी के बात करने से दूसरे अट्रैक्ट हों। देखो, हम देखें, बात ये होती है कि जब हम लाइव सेशंस करते हैं तो लाइव सेशंस में ये होता है कि हमें लोगों को मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि हमारे लाइव सेशंस देखें, हमारे लाइव सेशंस जो हैं वो देखें, ठीक है। लेकिन बात ये होती है कि जब हमारी जो बात करना या हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं ना, तो लोग खुद आते हैं, खुद देखते हैं हमें।
खुद वो उनको बल्कि इंतजार होता है कि हम कब लाइव आ रहे हैं, कब वो हमें देखेंगे और कब हमारी बातें वो सुनेंगे। तो सबसे ज्यादा मैं समझती हूँ तो हमें बात करना अच्छे से आनी चाहिए और कॉन्फिडेंटली बात करनी चाहिए। देखें मैं ये समझती हूँ और मेरे बाबा भी अक्सर मुझे यही बोलते हैं कि स्टार्टिंग की बात मैं बताऊं तो स्टार्टिंग में जब मैं स्टेज पे जाती थी तो मुझे बहुत डर लगता था बात करने से, लेकिन बाबा मेरे हमेशा यही कहते थे कि बेटा देखें जब आप स्टेज पे बैठी हुई हैं, आप स्टेज पे खड़ी हुई हैं, तो ये जब सब लोग बैठे हुए ना वो आपको सुनने के लिए आए हैं और लोग ऐसे किसी को सुनने के लिए नहीं आते। जब मतलब इंसान में एक चीज होती है तभी दूसरे उनको सुनते हैं। तो इसी वजह से कॉन्फिडेंटली बात करने से भी दूसरे लोग अट्रैक्ट होते हैं। अगर अगर बात करते अगर मैं स्टेज पे खड़ी हूँ और बात करते नहीं मतलब ऐसे एक्सप्रेशंस दूंगी ना तो दूसरे ये समझेंगे मुझे बात करना नहीं आ रही या मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। अगर मैं यही एक्सप्रेशन मैं मुझे मतलब अजीब ये सारी बातें मैं करती रहूंगी ना तो दूसरे लोग जो हैं वो बेजार हो जाएंगे और इवेंचुअली ये लोग बोलना शुरू कर देंगे यार इसको तो बात करनी नहीं आ रही, आपने इसको कैसे स्टेज पे खड़ा कर दिया है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स टाइट होने चाहिए। और हाँ सबसे बालातर चीज एक है कि जब भी आप होस्टिंग करने जाएं, जब भी आप स्टेज पे चढ़ें तो अपने साथ अपने पेपर्स तैयार कर लें ताकि आप कोई भी चीज मिस ना कर सकें। आपके पास वो चीज होनी चाहिए, बुलेट पॉइंट्स में लिख लें कि आपको इस वक्त ये बोलना है, आपको इस वक्त ये बोलना है, तो आपको मेरे ख्याल से कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, आप बहुत इजीली हैंडल कर लेंगी और इजीली बोल पाएंगी। और उसके अलावा हम ये समझते हैं कि एक दो दफा हमने सेशन कर लिए बस अब हमें बात करना आ गई है, अब हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम कर लेंगे, लेकिन ये चीज नहीं होती। हर दफा हमारे सामने अलग अलग ऑडियंस होती है, उनके जो हमारे साथ उम्मीदें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। वो चाहते हैं कि हम उनकी उम्मीदों पे खड़े उतरे और हम वही चीज बोल सकें जो लोग सुनना चाहते हैं। इसीलिए मुताला करना लाजमी है। अगर हम जिस भी टॉपिक पे बात करना शुरू करते हैं ना तो उस टॉपिक पे हमें कमांड हासिल तो होनी ही चाहिए ताकि हम बात कर सकें। अगर अगले वाला बंदा हमसे आर्ग्यू करे तो हम उस बात को जस्टिफाई कर सकें। वाओ प्रे, लाइक मैं खुद इंटरव्यूज कंडक्ट करती हूँ, लेकिन आपने जो चीज़ें बताई हैं मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला उससे, और आई होप कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं आपको देख रहे हैं उनको बहुत सारी स्किल्स इसमें से पता चले होंगे कि एक अच्छा होस्ट किस तरह से बना जा सकता है। तो फिर मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपने अपनी लाइफ की जो भी जर्नी, इतनी आपकी लाइफ की जर्नी रही है, आपने सोशल वर्क किया है, आपने मतलब सारी मल्टीटास्क कर रहे हैं आप, तो उसमें कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई आपके लिए जिसमें आपने लाइक ऐसा कंसिडर किया हो कि अब मेरी लाइफ का दी एंड है, अब मुझे कुछ भी नहीं करना, लाइक अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब मतलब मैं अपने आप को एक कंफर्ट जोन में पैक कर लूंगी और मैं बस वहां पे बैठ जाऊंगी, तो कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई है जब आप बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गई हो अपनी लाइफ से? जी अमरता, आपने जो सवाल किया है वो बड़ा खूबसूरत सवाल किया है और मैं नहीं समझती कि ये जो सिचुएशन जिस सिचुएशन का आपने जिक्र किया है वो किसी पे ना आई होगी। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझ पे ये सिचुएशन बहुत दफ़ा आई है जब मैंने सोचा था कि मैं सब छोड़ दूंगी, अब मुझे कुछ नहीं करना अब। और ये एक दफ़ा नहीं हुआ, ये बहुत दफ़ा हुआ है ज़िंदगी में। और क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हमारी जो लाइफ की लाइन है ना वो जिगजैग होती है, तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं हमारी लाइफ में। जब लाइन सीधी हो जाती है तो हम मर जाते हैं, मैं ये समझती हूँ। तो मैं समझती हूँ कि ये जिगजैग्स होने चाहिए हमारी लाइफ में। और मैं बहुत बार डिसअपॉइंट हुई हूँ और मैंने बहुत बार ये चीज़ सोची है कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगी और हर चीज़ को छोड़ दूंगी, लेकिन फिर मुझे एक दफ़ा एक उस्ताद ने एक बात समझाई थी जो लिटरली मेरे दिल में घर कर गई और मुझे अभी तक वो चीज़ याद है। और जब भी मैं किसी को डिसअपॉइंट देखती हूँ तो मैं उसको भी यही चीज़ बोलती हूँ। वो बात ये थी कि उन्होंने एक लेक्चर दिया था, उसमें उन्होंने बोला था कि बेटा देखें हमारा काम क्या होता है, मेहनत करना। मेहनत करना काम होता है ना हमारा, हमारा काम मेहनत करना होता है, फल देना अल्लाह का काम होता है। हमारी मेहनतों का फल देना अल्लाह का काम होता है। फिर आप अल्लाह के काम को क्यों सोच रही हैं, आप रिजल्ट का क्यों सोच रही हैं? आप हमेशा जो है वो खुद को डिप्रेस क्यों कर देती हैं हमेशा ये सोच के कि आपका रिजल्ट क्या आएगा?
آپ جو کام کر رہی ہیں اس کا رزلٹ کیا آئے گا. یہ آپ سوچتے سوچتے خود کو بے حال کر دیں گی, لیکن آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ آپ کے کام کا رزلٹ کب آئے گا, کیونکہ آپ کے کام کا رزلٹ خدا پہ رکھا ہوا ہے, خدا آپ کو دے گا. جب آپ خدا پہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں نا, توکل کر دیتے ہیں نا, تو ریلیکس ہو جانا چاہیے. میں یہ چیز مانتی ہوں کہ خدا پہ توکل جو ہے وہ دیوانوں کی طرح کرنا چاہیے. دیوانوں کی طرح ایسے کرنا چاہیے کیونکہ دیوانے کو محبوب کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا. تو ہمیں توکل بھی ایسے کرنا چاہیے. جب ہم توکل کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, تو اگر, ہاں, نہ, نہیں, مگر نہیں آنا چاہیے. ہمیں جو ہے نا وہ بس کر لیا تو کر لیا. انسان ہے, رونا آ جاتا ہے, ہم ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں, لیکن ڈونٹ وری, جب اللہ پہ چھوڑ دیا ہے تو اللہ آپ کو اچھا ہی رزلٹ دے گا, کیونکہ ہی از اے بیسٹ پلانر. تو میں اس چیز کو مانتی ہوں. ہاں, اس کے بیچ میں آپ کو محنت جاری رکھنی ہے, محنت کرنی ہے آپ کو, صرف توکل نہیں کرنا, محنت کرنی ہے اس کے ساتھ. جیسے وطائے فقیر کی طرح صرف پیڑ پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہنا کہ اللہ مجھے کھانا دے دو, نہیں, اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی, آپ کو پیڑ سے نیچے آنا پڑے گا, لیکن اس محنت کے ساتھ آپ کو توکل بھی کرنا ہے. اور جب توکل کر لیا نا, اس پہ پریشان نہیں ہویا کرتے. تو اب جب بھی میں پریشان ہوتی ہوں تو سر کی یہ بات یاد کر کے اور پھر بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتی ہوں, کیونکہ میں سب کی بات کروں کہ ہم اکثر پریشان رزلٹ پہ ہوتے ہیں. ہم رزلٹ پہ پریشان ہوتے ہیں نا, جب ہم کوئی کام کر لیتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا آئے گا, اس کا انجام کیا ہوگا, یہ کیسے ہوگا, کیا ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے, اور میرے استاد نے مجھے جو بات بتائی تھی اس سے مجھے یہی لگتا ہے کہ ہمیں رزلٹ کے لیے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ رزلٹ دینا جو ہے نا وہ اللہ کا کام ہوتا ہے. اور ہمیں جس کے لیے پریشان ہونا چاہیے وہ ہے محنت. ہمیں محنت جم کے کرنی چاہیے, ایکسکیوز نہیں دینے چاہیے کہ نہیں ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے, ہم نے اللہ سے دعا مانگ لی ہے, بس بات ختم. نہیں, یہ چیز نہیں چلتی ہے. توکل کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. تو اگر ہم محنت کرتے ہیں, پھر توکل خدا پہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں نا, توکل کرتے ہیں, تو میرے خیال سے ہمارے مسئلے آسان ہو جاتے ہیں. بالکل. ماشاء اللہ سے آپ جتنی خوبصورت خود ہیں اتنی خوبصورت آپ باتیں کرتی ہیں, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ویورس کو آپ کی باتیں بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہیں, کیونکہ مجھے خود بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ کی باتیں کرنا, اور دل کر رہا ہے کہ آپ سے بس باتیں کرتی ہوئی جاؤں. تو میرا اگلا کوشچن آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کی لائف کی کوئی ایسی اچیومنٹ کہ جس میں مطلب آپ سمجھیں کہ یہ میری لائف کی سب سے بڑی اچیومنٹ تھی, اور اس وقت آپ کی فیلنگس کیا تھی, لائک آپ نے جو اس وقت فیل کیا تھا اس طرح آپ مجھے ایکسپلین کر سکتی ہیں؟ دیکھیں, میں نہیں سمجھتی کہ سیکھنے کی کوئی عمر ہوتی ہے, یا سیکھنے کا ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے, یا اچیومنٹس کا جو ہے وہ ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ چیزیں آتی رہتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. تو میں اتنا خاص نہیں سمجھتی کہ میں نے اتنی زیادہ اچیومنٹس حاصل کی ہیں. تو باقی بہت سے ایسے دن ہوں گے, جیسے مجھے یاد ہے کہ 8 کلاس میں جب میں تھی تو میں ہمیشہ نا سیکنڈ پوزیشن پہ آتی تھی. تو 8 کلاس میں یہ سین تھا کہ میں نے نا میری دادی جو تھی ان کو, مطلب میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو میرے ٹیوشن ٹیچر آتے تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ نا تم اب کی بار جو ہے نا وہ فرسٹ پوزیشن لینا. تو میں نا اس پہ, مطلب وہ انہوں نے اتنے پیار سے نہیں بولا تھا, ڈانٹ کے بولا تھا کہ تم فرسٹ پوزیشن نہیں لے سکتے, تمہیں فرسٹ پوزیشن لینی پڑے گی, یا ہمیشہ سیکنڈ آتی ہو, یہ وہ ساری چیزیں نا. تو بہرحال اس کے بعد نا میں بہت روئی تھی, لیکن میری دادی نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا تھا کہ نہیں تم فرسٹ پوزیشن لوگی, اور انشاءاللہ لوگی. تو اس کے بعد نا میں نے 8 کلاس میں بہت زیادہ محنت کی تھی, اور مجھے بالکل یاد ہے کہ اپریل کا مہینہ تھا, 20 اپریل ڈیٹ تھی جب میری دادی کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور مئی میں میرا رزلٹ آیا تھا اور اس میں میری فرسٹ پوزیشن تھی. مطلب میں اتنا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کس کیفیت میں ہوں, میں خوش ہوں یا میں روؤں, یا میں کہاں جاؤں, میں کس کو وہ اپنا رزلٹ دکھاؤں کہ میں نے سچ میں فرسٹ پوزیشن لے لی ہے. تو میری دادی جو تھی وہ ہمارے سیکنڈ پوزیشن میں رہتی تھی, تو میں نا پہلے اوپر گئی. مجھے اتنا وہ تھا کہ مجھے مطلب میں دادی سے بات کر سکوں, اور میں دادی کو بتا سکوں کہ میری مطلب سیکنڈ پوزیشن آ گئی ہے, اور میں ان کو یہ چیز بتاؤں.
प्रे आपका माइक म्यूट पे है, हम आपको नहीं सुन सकते। सॉरी। मैं जब ऊपर गई थी तो मैंने जब दादी को मतलब ऐसे ही जैसे शी वॉजंट देयर, लेकिन मैंने ये चीज़ उनको बताई कि मैंने फर्स्ट पोजीशन ली है, और लिटरली मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि हाँ दादी ने ये चीज़ बोली है और मैंने सच में फर्स्ट पोजीशन ले ली। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट पोजीशन लेना शुरू कर दी थी, और मैंने समझा था कि हाँ अब मैंने सेकंड पे नहीं रहना, अब मुझे फर्स्ट पे रहना है। डोंट बी अपसेट प्रे, दादी अब भी आप पे प्राउड करती होगी। वो जिस तरह आपकी छोटी छोटी लाइफ की अचीवमेंट्स देखती हैं, हमें कभी कभार नहीं लगता कि हमारी लाइफ में कोई बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है हमारी, क्योंकि हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो दादी आज भी आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड कर रही होंगी। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपनी लाइफ की कोई भी ऐसी 3 सजेशंस मुझे बताएं जो कि आपके पेरेंट्स ने आपको दी हो, या फिर किसी अच्छे दोस्त ने दी हो, या आपके टीचर ने, या फिर कोई भी जो आपका वेल विशर हो। अच्छा, ज़िंदगी में सजेशंस तो बहुत मिली हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो नसीहतें देना ज़्यादा जानते हैं, बातों को समझते कम है, नसीहतें ज़्यादा देते हैं। और हम में ये चीज़ है भी सही कि नसीहतें बहुत दी जाती है कि ये ना करो, वो ना करो। लेकिन हाँ, आपने 3 नसीहतों का बोला तो मुझे कुछ नसीहतें याद हैं। पहली तो अपने बाबा की, जो मेरे बाबा हमेशा हमें समझाते हैं, हम तीनों बहनों को समझाते हैं कि जो भी आपसे, मैं मतलब ऐसे कम नहीं कहूँगी कि हमसे कम लोग, मैं ऐसे कम बोलूँगी कि जो फाइनेंशियली कम हैं या जिनकी इनकम कम है, जैसे कि हमारे स्कूल में पियोन्स होते हैं या हमारे स्कूल में गार्ड्स होते हैं, उनसे बहुत प्यार से मिला करो। उनके पास जब भी जाया करो उनसे झुककर मिला करो, उनको सलाम किया करो, उनके लिए चीजें लेके जाया करो, उनके लिए गिफ्ट लेके जाया करो, और जब भी ईद हो उनके लिए कोई ना कोई अच्छी चीज या उनके लिए कपड़े जरूर लेके जाया करो। मतलब उनसे प्यार करा करो, और उन पे, क्योंकि एक चीज होती है ना कि जब हम किसी अमीर को या किसी ऐसे बंदे को जो वेल सेटल्ड है, उसको जब हम अहमियत देते हैं ना, तो हम एक लालच में अहमियत देते हैं कि रिटर्न में हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। लाजमी सी बात है, अगर कोई वेल सेटल्ड बंदा है, अगर हम उसकी खिदमत कर रहे हैं, उसके आगे पीछे फिर रहे हैं, तो इसका यही मतलब होता है कि हमें उससे कोई ना कोई फायदा मिलना है। लेकिन इन लोगों से हमें कोई फायदा नहीं मिलता है। ये लोग जो होते हैं ना, वो हमें कोई फायदा नहीं दे सकते, लेकिन हाँ एक बहुत बड़ी चीज दे सकते हैं, वो है दुआ, जो जिंदगियों में बहुत ज्यादा कम होती है, और दुआ देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो बाबा हमेशा यही बोलते हैं कि आप बेटा उन लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल किया करें जो आप लोगों से कम है। कम से मुराद जो पियोन्स हैं, गार्ड्स हैं, उन लोगों की, या जो घर में मासी काम करती है, या आपसे डेजिग्नेशन में जो कम लोग हैं ना, उनका हर तरह से ख्याल किया करें, ताकि जो आप हैं वो भी ग्रो कर सकें, और वो भी जो है वो आपके लिए हमेशा दुआएं करते रहें, और जब भी आप कहीं जाएं तो आपको वो प्यार से याद करें। और उसके अलावा मेरी अम्मा की एक एडवाइस मुझे हमेशा याद रहती हैं, जो हमेशा हमें बताती हैं, हम तीनों बहनों को ये कहती हैं कि बेटा रिश्तों को जो है ना वो हमेशा निभाया करो, रिश्तों को कभी भी ऐसे छोड़ नहीं दिया करो। हाँ, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, रिश्तों में लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं, लेकिन ये चीजें सोच कर या ये चीजें समझ कर कभी भी रिश्तों से दूर नहीं जाया करो। और लिटरली अगर मैं किसी से रिश्ता निभा भी रही हूँ तो ये चीज मुझे अपनी अपनी अम्मी से आई हुई है। आज की मैं बात बताऊं कि आज मैं अपनी 10 साल पुरानी दोस्त से बात कर रही थी, 6 क्लास की दोस्त से। मैं उससे बात कर रही थी और शी वाज सेइंग कि हमारी दोस्ती को इतना टाइम हो गया है, ये है वो है। तो मैं उससे मजाक कर रही थी, बेटा निभाने में मेरा हाथ है, मैं निभा रही हूँ, तुम लोगों ने नंबर भी चेंज कर लिए थे, हम हमारी दोस्ती चल रही है ना, वो मेरी वजह से चल रही है। तो कह रही हाँ बेटा आपकी वजह से चल रही है। तो यही सारी बातें कि मुझे अगर किसी रिश्ते को निभाना आता है तो वो मैंने अपनी माँ से सीखा है कि रिश्तों को कैसे निभाया जाता है और उनको कैसे हैंडल किया जाता है, और हम उनको कैसे प्यार से ट्रीट करें, क्योंकि मैंने अम्मा को शुरू से रिश्तों को निभाते हुए देखा है। वो भले रिश्ता कोई भी हो, बहन का हो, भाई का हो,
अम्मा हर रिश्ते को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाती हैं, और मैं ये समझती हूँ कि एडवाइस जो हम एक दे देते हैं ना, वो ऐसे काम नहीं आती, वो तब काम आती है जब हम वो चीज देखते हैं दूसरों में। जैसे मैंने बाबा को सच में अपने से कम लोगों का ख्याल रखते हुए देखा है, अपने पियोन्स का ख्याल रखते हुए देखा है। तो वही चीज जो है वो मेरी बड़ी बहन है संझा, वो भी करती है अपनी ऑफिस में। तो वो चीज मैंने खुद देखी है, तभी मैंने उस चीज को ज्यादा अपने आप में वो चीज समाने की कोशिश की है। जब हम चीज एक तो सुनते हैं, एक जब चीज देखते हैं ना प्रैक्टिकली, तब उस चीज को हम ज्यादा अमल में लाते हैं। इसी तरह से मैं अपनी अम्मा की बात बताऊं तो अम्मा को भी मैंने रिश्ते निभाते हुए देखा है, प्रैक्टिकली ये चीजें करते हुए देखा है, तभी मैं ये चीज सीख सकी। थैंक यू सो मच प्रे, आपने बहुत अच्छी सजेशंस दी हैं। मैं अपने इंटरव्यू को कंक्लूड कुछ इस तरह से करूँगी कि आप हमें अपनी लाइफ में जो भी आपने अपनी लाइफ से सीखा है, जस्ट एक दो लाइन में थोड़ा सा कि आपने अपनी लाइफ से क्या सीखा है और आप हमारे व्यूअर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगी, थोड़ा सा बस इस ये करके हम कंक्लूड करेंगे इंटरव्यू। अच्छा अमरता, बात आई सीखने की, तो मैंने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और मैं समझती हूँ कि हमारे साथ जो भी चीज़ होती हैं, तो हमें उन चीज़ों से सीखना चाहिए। सिर्फ ये देख के बैठ नहीं जाना चाहिए कि ये चीज़ गलत है और हमारे साथ गलत हुआ है, बस अब हम लुट गए हैं। हमें ये चीज़ देखकर ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो एक बात आपने कही तो मैं एक बात बता देती हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है, कि चीजें जो होती हैं वो वक्ती होती हैं, वो टूट जाती हैं, वो आर्जी होती हैं, वो टूट जाती हैं, लेकिन लहजे दायमी रहते हैं, सदियों का असर छोड़ जाते हैं। तो हमें अपना लहजा जो है वो बहुत ही धीमा रखना चाहिए, और इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि अगले वाले बंदे को क्या चीज हर्ट कर रही है। हमें बात करते वक्त इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो चीजें जो होती हैं वो जल्दी टूट जाती हैं और वो रहती भी नहीं है साथ, लेकिन लहजे हमेशा याद रह जाते हैं, सदियों का असर छोड़ जाते हैं। तो अपना लहजा जो है वो अच्छा रखें। और उसके अलावा आपने जो कहा कि हमारी ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहूँगी, मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स। जब हम स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करते हैं तभी इनोवेशंस आती हैं, और इनोवेशन से हम खुद भी आगे बढ़ते हैं और लोगों को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रे, मुझे उम्मीद है हमारे जो भी व्यूअर्स हैं वो हमारे आज की इस इंटरव्यू को देख के बहुत इंस्पायर हुए होंगे आपसे, और आपकी जो भी आपने नसीहत दी उस पर अमल करेंगे। एक और बात मैं अपने व्यूअर्स को बताती चलूँ कि प्रे मेरी बहुत जगह पे मेरी कलीग भी रह चुकी है, और प्रे मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और आज उनको इस इंटरव्यू में लाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पर्सनली जानती हूँ, और मैं ये चाहती थी कि हमारे व्यूअर्स भी उनकी अकल से या फिर उनकी जो भी स्किल्स हैं उनसे वो भी बहुत कुछ सीख सकें। सो थैंक यू सो मच प्रे, आपने मुझे टाइम दिया और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत इंस्पायर किया होगा आपके इस इंटरव्यू ने। इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे एक अच्छे गेस्ट के साथ, एक अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।